Hello students, this is practical number 2 from your 12th standard syllabus, that is sonometer 1. Now the name itself suggests that we are going to verify the law of transverse vibrations of string, that is law of length. Now aim of the experiment is to study the relation between the frequency and the length of a given wire under constant tension using sonometer. So we are going to verify the relation between frequency n and the length of a given wire, that is L, and the condition is that tension remains constant and small m, that is nothing but mass per unit length, remains constant. Now the apparatus which are used in this experiment are sonometer, hanger, slotted weights each of 500 gram, tuning forks, rubber pad, meter scale and paper rider. Now the formula to find the fundamental frequency in transverse vibrations is n is equal to 1 upon 2L square root of T by M, where T is nothing but tension applied to the string or wire, n is nothing but frequency of wire, that is of tuning fork. जब भी वो रेजोनेट होगा वायर तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ट्यूनिंग फोक के जितना. Then L is nothing but resonating length of wire which is resonating with tuning fork, and M is nothing but mass per unit length of the string. Clear? Now we are going to verify the law of transverse vibrations of string, that is first law, law of length. Where fundamental frequency n is nothing but 1 upon 2L square root of T by M. जैसे हम लोगों ने पहले देखा, what is n? Frequency, fundamental frequency. What is L? L is nothing but vibrating length of wire. T is nothing but tension applied to the string, and small m is nothing but mass per unit length of the string. So according to law of transverse vibrations of string, that is law of length, the frequency is inversely proportional to length. तो ये फॉर्मूला में अगर आप L को शिफ्ट करते हो टुवर्ड्स n साइड तो NL is equal to 1 upon 2 square root of T by M. अगर आप टेंशन विच इज अप्लाइड टू द वायर कांस्टेंट रखते हो और m वायर चेंज नहीं कर रहे हो तो m भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो टर्म है 1 upon 2 square root of T by M is going to remain constant, and this is nothing but NL. So NL product is going to remain constant if T and M are kept constant. So क्या है law of length? N should be inversely proportional to length, vibrating length of wire, when T and M are kept constant. और यही law, first law, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है by using sonometer apparatus. Clear? Now this is nothing but the apparatus which is used to verify the sonometer first law. Now this apparatus is called sonometer wooden box. Now this is nothing but wire which is called sonometer wire. Now one end of this wire is fixed to the wooden board and the other end is passed over the pulley. Now to the free end of this wire slotted weights are attached. So ये इस तरह के weights यहाँ पे attach किए to the hanger.
Now hanger is of 500 gram and each this weight is of 500 gram. तो रीडिंग चेंज करने के लिए, टेंशन चेंज करने के लिए जब भी आपको वेट डालना है तो आप ईच टाइम कितना इंक्रीज कर सकते हो वेट? बाय 500 ग्राम ईच टाइम. क्लियर? नाउ दिस वायर इज सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस. तो ये 2 नाइफ एजेस पे हमने जो वायर को सपोर्ट किया है दैट इज योर वाइब्रेटिंग लेंथ. तो ये पूरा जो वायर यहाँ पे दिख रहा है दैट इज नॉट योर वाइब्रेटिंग लेंथ. आपका वाइब्रेटिंग लेंथ यहाँ पे क्या हो गया? रेस्ट्रिक्ट हो गया बिटवीन दीज 2 नाइफ एजेस. क्लियर? Then there is a set of tuning forks. यहाँ पे सेट दिया आपको ट्यूनिंग फोर्क्स का, जैसे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपको सेट दिया था वैसे ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे सेट बनाया गया. ठीक है, तो टोटल देयर 6 to 7 फ्रीक्वेंसीज. 5 फ्रीक्वेंसीज आर सफिशिएंट टू फाइंड आउट द रीडिंग. तो यहाँ पे इनका वैल्यूज स्टेम पे लिखा होगा, चेक करो ये वैल्यूज को एंड according to the value which is written over here you have to arrange this tuning forks in the descending order. तो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेक करती हूँ तो दिस इज 512 हर्ट्ज. तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये सेट में, तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे. नेक्स्ट देयर इज 480 हर्ट्ज, देन 384 हर्ट्ज, 341 हर्ट्ज, 320 हर्ट्ज. तो ये 5 ट्यूनिंग फोर्क्स सफिशिएंट है हमें रीडिंग लेने के लिए. ठीक है, एंड नेक्स्ट जैसे रेजोनेंस ट्यूब ने हमने स्टार्ट किया था विद द हाईएस्ट ट्यूनिंग फोर्क, वैसे यहाँ पे आपको हाईएस्ट ट्यूनिंग फोर्क से क्या करना है? स्टार्ट करना है. क्लियर? तो अभी यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे? यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायर. तो इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है व्हेन द टेंशन व्हिच इज अप्लाइड टू द वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो m और टेंशन को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे. तो टेंशन चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट और ये वायर हम चेंज नहीं कर रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. सो स्मॉल m विच इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. अभी ये ध्यान दो कि m क्या है, स्मॉल m क्या है. तो ये अगर लेंथ मैंने फाइंड आउट किया वायर का, ठीक है, इस लेंथ को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ स्केल और इसी लेंथ का अगर मैं मास फाइंड आउट करती हूँ स्मॉल m. ठीक है, तो मास मतलब कैपिटल M यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया, कैपिटल M फाइंड आउट किया, टोटल लेंथ का मास. तो मास m अपॉन लेंथ ऑफ द वायर इज नथिंग बट स्मॉल m विच इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. तो m इज नथिंग बट मास ऑफ दिस वायर अपॉन लेंथ ऑफ दिस वायर. तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? स्मॉल m विच इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. क्लियर? तो ये जो वायर हम चेंज नहीं करेंगे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. तो दिस m एंड टेंशन अप्लाइड टू द वायर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. अभी यहाँ पे हम टेंशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो जब तक हम इस वायर को अंडर टेंशन नहीं रखेंगे तब तक यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव सेटअप नहीं होगा. तो सपोज इस वायर को मैंने अभी 2 kg लोड सस्पेंड कर दिया तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? 2 kg इंटू 9.8, इतना न्यूटन टेंशन आ गया. ये वायर अभी क्या है? अंडर स्ट्रेस है, अंडर टेंशन है. तो जैसे ही मैं इसको वाइब्रेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क तो ये इसके साथ क्या करेगा? वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा एंड देन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ट्रांसवर्स वेव्स. तो ये इतने रीजन में क्या सेटअप करेगा? ट्रांसवर्स वेव जो इस बाउंड्री से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा. So there is interference between the transverse incident wave and reflected wave and there will be formation of what? Stationary transverse wave. तो यहाँ पे ये नोड और एंटी नोड बनाएगा और रेजोनेंस फेनोमेना से हमें क्या पता चलेगा? इस लेंथ का फ्रीक्वेंसी जो किसके इक्वल होगा? रेजोनेंस अगर होगा तभी ये ट्यूनिंग फोर्क के इक्वल होगा. क्लियर? तो ये सिर्फ मैंने जनरल आइडिया बताया तुम लोगों को कि हमें ये एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई कैसे करना है. ठीक है, तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे. अच्छा, नाउ वी हैव अरेंज, चालू केलं बोलना आला माझा. नाउ वी हैव अरेंज these tuning forks in the descending order and we'll start with the highest frequency that is 512 hertz. Clear? Now we have to keep this distance between the knife edges minimum. We have to place the paper header in the middle. तो यहाँ पे रेजोनेंस अकर हो रहा है नहीं, जैसे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में रेजोनेंस अकर हो रहा है नहीं, उसका इंडिकेशन क्या था? लाउड साउंड. जब ये लाउड साउंड आता था तभी ये ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी
एयर कॉलम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। तो यहाँ पे रेजोनेंस हमें आंखों से नहीं दिख रहा है, बट रेजोनेंस अकर हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय प्लेसिंग पेपर एडर इन द मिडल। तो अगर ये लेंथ फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है विथ 2 नोड्स एट द नाइफ एजेस एंड 1 एंटी नोड एट द सेंटर, तो सेंटर पे क्या करेगा, जो भी पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के साथ वाइब्रेट करेगा एंड दिस पेपर एडर फ्लटर्स एंड देन फॉल्स ऑफ। तो ये गिरेगा पेपर एडर फ्लटर होके, कभी जब यहाँ पे रेजोनेंस अकर होगा मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा, कभी व्हेन दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच लेंथ। क्लियर? तभी हमें समझ में आएगा कि इस लेंथ का, इस वायर का फ्रीक्वेंसी जितना ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी है उतना ही है। क्लियर? So now we start the experiment. We have to strike this tuning fork on the rubber pad and hold it with the stem in contact with the wooden board. ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स को मत होल्ड करो, इसके स्टेम को होल्ड करना है एंड देन इसको स्ट्राइक करना है जेंटली ऑन द रबर पैड एंड देन यू हैव टू होल्ड इट नियर द वुडन बॉक्स, नियर द वायर विद द स्टेम इन कॉन्टैक्ट विद द वुडन बॉक्स। तो यहाँ पे पेपर एडर फ्लटर नहीं किया, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। तो गो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, स्ट्राइक करो फिर से डिस्टेंस को क्या करना है, थोड़ा 0.5 से इंक्रीज करो एंड ऑलवेज प्लेस द पेपर एडर एट द सेंटर। So these are some of the precautions that you have to take while performing this experiment. Clear? पेपर एडर हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, क्योंकि सेंटर में एंटीनोड फॉर्म करेगा प्राइमरी रेजोनेंस में। देन ये जो वेट आप यहाँ पे लगा रहे हो टू द अदर एंड ऑफ द वायर, ये वेट टेबल को टच नहीं करना चाहिए। क्लियर? देखिए फ्लटर होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब अभी एंटीनोड फॉर्म होगा सेंटर पे। तो जहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशंस होंगे या पेपर एडर फॉल होगा वहाँ पे रेजोनेंस अकर होगा। तो यहाँ पे पेपर एडर फ्लटर होके फॉल हुआ, इसका मतलब ये लेंथ का फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इक्वल हो गया। क्लियर? तो अभी हमें ये लेंथ का फ्रीक्वेंसी नहीं पता था, बट रेजोनेंस फेनोमेना से हमने इस लेंथ का क्या फाइंड आउट किया, फ्रीक्वेंसी। लेंथ हम यहाँ पे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर करेंगे और फिर हमें कैलकुलेशन करना है फॉर एनएल। सो दिस विल गिव द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ। ठीक है? तो यहाँ पे हम रीडिंग लेंगे, बट उससे पहले फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि पेपर एडर किस तरह से फ्लटर होके गिरता है। So now we will measure the distance between the two knife edges. So this distance between the knife edges is equal to 12.5 centimeter. Is equal to 12.5 centimeter. तो ये मुझे क्या मिला है, स्मॉल एल विच इज नथिंग बट रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ द वायर, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, जितना ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी, दैट इज नथिंग बट 512 हर्ट्ज। क्लियर? नेक्स्ट वी विल चेक फॉर 480 हर्ट्ज। तो अगेन यहाँ पे आपको डिस्टेंस कम नहीं करना है, आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगा तो अकॉर्डिंगली लेंथ विल चेंज। तो इसी लेंथ से आगे आपको क्या करना है, चेक करना है रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है? अगेन यू हैव टू प्लेस दिस पेपर एडर इन द मिडल of the wire, strike this tuning fork on the rubber pad and go on increasing the distance between the knife edges. तो
यहाँ पे फ्लटर करना स्टार्ट किया, जहाँ पे वो फ्लटर होके फॉल होगा वो लेंथ होगा आपका रेजोनेटिंग लेंथ। अच्छा, यहाँ पे फ्लटर होके फॉल हुआ, अगेन विल चेक, फिर से आपको चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे फ्लटर होके फॉल हो रहा है पेपर राइडर, अगेन वी हैव टू मेजर द रेजोनेटिंग लेंथ फॉर 480 हर्ट्ज। नाउ दिस लेंथ इज नथिंग बट 14 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 14 सेंटीमीटर फॉर 480 हर्ट्ज। क्लियर? अब ये ध्यान देना है आपको कि आपने एक रीडिंग लिया है, बट आपको हैंडबुक में 2 रीडिंग्स लेने हैं फॉर ईच ट्यूनिंग फोक। तो यहाँ पे आप 512 के लिए 2 बार रीडिंग लोगे, 2 बार आपको चेक करना है, एंड देन अगेन फॉर 480 यू हैव टू चेक ट्वाइस। क्लियर? तो हर ट्यूनिंग फोक के लिए आप 2 रीडिंग फाइंड आउट करोगे, L1 एंड L2, एंड देन यू हैव टू मेजर द एवरेज लेंथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने 480 फिनिश किया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट विथ 384 हर्ट्ज। तो ये याद रखिए, पहला 512 के लिए हमारा लेंथ आया था 12.5, देन 480 के लिए लेंथ लगभग आया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो ये रीडिंग्स जो आएंगे 2-2 बार हम लोग लेंगे ये रीडिंग्स, तो हमें ये नोट डाउन करने हैंडबुक, एंड ऑलवेज प्लेस दिस पेपर राइडर इन द मिडल। सो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे लेंथ इंक्रीज करना। So go on increasing the length. यहाँ पे मैक्सिमम फ्लटर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे फ्लटर होके फॉल हुआ, इसका मतलब इस लेंथ का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू 384 हर्ट्ज। तो अगेन विल चेक फॉर द सेम ट्यूनिंग फोक। अच्छा, यहाँ पे फ्लटर होके फॉल हुआ, then next you have to measure the distance between the knife edges. Now this distance is nothing but 18 centimeter. कितना मिल रहा है हमको? 18 centimeter. So this is for 384 hertz. तो ऐसे ही आपको जो अदर टू ट्यूनिंग फोक से 2 ट्यूनिंग फोक बचे 341 एंड 320, उसके लिए भी आपको ये रेजोनेटिंग लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने ध्यान दिया तो 512 के लिए हमारा रीडिंग 12.5 के करीब था, देन 480 हर्ट्ज के लिए 14 के करीब था, देन 384 हर्ट्ज के लिए हमारा रीडिंग कितना आया, यहाँ पे 18 कुछ आया है। ठीक है, इसके बीच में और अगर एक फ्रीक्वेंसी होता 426 तो हो सकता है उसका 16 पॉइंट समथिंग होता। तो एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे रेजोनेटिंग लेंथ क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। सो दिस प्रूव्स दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड व्हेन T and M are kept constant, जब भी टेंशन हम लोग इस वायर का कांस्टेंट रखते हैं और M कांस्टेंट रखते हैं, मतलब वायर फिक्स रखते हैं, तो ये जब भी कांस्टेंट रहेगा तो N क्या करेगा, NL प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सोनोमीटर 1 का फर्स्ट लॉ वेरीफाई किया, विच इज नथिंग बट लॉ ऑफ लेंथ व्हेन T and M आर केप्ट कांस्टेंट। क्लियर? Now we'll note down the observations and the readings in the observation table which we have taken in this experiment. So the first observation is mass of the hanger which is attached to the free end of the wire, which is M0 is equal to 500 gram. Then the total mass capital M which is suspended from the free end of the wire is nothing but mass of the hanger plus mass added in the hanger.
So 3 more weights are added, each of 500 gram in the hanger. So total mass will be 2 kg weight. Mass is 2 kg and total weight suspended will be 2 kg weight. So tension applied to the wire T is nothing but M into G is equal to 2 kg weight or 2 into 9.8 Newton. अगर हमें डाइन में एक्सप्रेस करना है तो that will be 2000 into 980 dyne. So this tension is going to remain constant throughout the experiment and small m is going to remain constant. Now we will note down the readings in the observation table for NL. So these are nothing but the observations those you have taken in this experiment. The first column is of frequency. Now you have arranged these tuning forks in the decreasing order, in the descending order. So first frequency is 512, then 480, then 384, then 341 and then 320. So हर ट्यूनिंग फोक के लिए हमने 2 बार रीडिंग फाइंड आउट किया रेजोनेटिंग लेंथ. हो सकता है वो दोनों बार सेम हो या कभी कभी अलग भी आ सकता है रीडिंग. तो अलग रीडिंग है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज लेंथ. सो दिस इज द कॉलम फॉर वाइब्रेटिंग लेंथ. सो ईच ट्यूनिंग फोक रीडिंग is average over here. So this is 12.5 plus 13 divided by 2, that will be 12.75. 480 के लिए 14 ही मिला है हमें 2 बार रीडिंग, तो एवरेज विल बी 14. For 384, 18 and 17.8, so average 17.9. For 341, reading is same, that is 19, so average will be same. For 320, average is 20.25. तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है ये एक्सपेरिमेंट में तो हमें 1/L रेसिप्रोकल भी लगेगा लेंथ का. तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल के वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं और ये है NL का कॉलम. तो NL इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ. सो अगर T और M को हम कांस्टेंट रखते हैं तो NL प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. तो यहाँ पे N इनटू लेंथ करने के बाद हमें ये वैल्यू मिला है. ये लॉग कैलकुलेशन से हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हम लॉग कैलकुलेशन से नेक्स्ट स्लाइड में फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. So now this is the log calculation table for NL. तो लॉग कैसे फाइंड आउट करना है, हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं और मैंटिसा. तो डॉट से पहले जो आता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक और डॉट के बाद जो आता है फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज नथिंग बट मैंटिसा. तो NL प्रोडक्ट है तो हमें log N और log L क्या करना है, ऐड. तो फर्स्ट विल फाइंड आउट log N. तो ये जो है 512 का लॉग, ये सारे फ्रीक्वेंसी 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 2. एंड देन 51 का 2 में हमें मैंटिसा देखना है. ऐसे ही यहाँ पे 2 डॉट 48 का 0 में मैंटिसा देखना है. 384 में 38 का 4 में हमें क्या देखना है, मैंटिसा. यहाँ पे 341 अगर फ्रीक्वेंसी है तो 34 का 1 में हमें मैंटिसा देखना है और यहाँ पे 320 अगर फ्रीक्वेंसी है तो 32 का 0 में मैंटिसा देखना है. एंड कैरेक्टरिस्टिक हर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आएगा, 2. ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट लॉग L फाइंड आउट करना है. हर लेंथ का हमें लॉग फाइंड आउट करना है. तो डॉट से पहले अगर 2 डिजिट है, मतलब अगर रीडिंग 14 है तो 2 डिजिट अगर वहाँ पे है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1. तो सब जगह कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 होगा और फिर हमें उसका क्या देखना है, मैंटिसा. नाउ NL प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो लॉग क्या होगा, ऐड होगा. तो यहाँ पे हमने एडिशन फाइंड आउट किया, वो कितना आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग. अभी जब ये एंटी लॉग फाइंड आउट करते हो तभी हमें आंसर मिलेगा NL प्रोडक्ट. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को छोड़ दो और डॉट 81 का 4 और 8 में क्या देखना है, एंटी लॉग जो होगा 6528. देन द कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट 3. तो हमारा 4 डिजिट का आंसर आना चाहिए. 3 + 1 4. तो ये 4 डिजिट का हमारा आंसर आया 6528. यहाँ पे आया 6719, 6874, 6480 एंड 6480. तो ये 5 कैलकुलेशंस हमें मिले NL के लिए. तो अगर ये सारे वैल्यूज आप देखते हो तो ये नियर अबाउट क्या है, कांस्टेंट. सो NL इज कांस्टेंट व्हेन T and M आर कांस्टेंट.
सो ये शो करेगा, वेरीफाई करेगा फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ लेंथ, दैट इज n is inversely proportional to length or NL is going to remain constant when T and M are kept constant. Clear? So यहाँ पे हमें ये पांचों वैल्यूज का मीन NL फाइंड आउट करना है. So we'll add them and divide by 5. तो ये पांचों NL वैल्यूज ऐड करो और डिवाइड बाय 5 करो तो विल गेट 6616.2 हर्ट्ज सेंटीमीटर. ये हर्ट्ज में आता है फ्रीक्वेंसी और लेंथ होता है सेंटीमीटर, तो हर्ट्ज सेंटीमीटर विल बी द यूनिट फॉर NL प्रोडक्ट. तो ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा NL व्हेन T and M आर केप्ट कांस्टेंट. और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट. क्लियर? नाउ व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? तो हमने यहाँ पे वेरीफाई किया लॉ ऑफ लेंथ. So we observe that all NL values are same within the experimental error and N frequency is inversely proportional to the vibrating length of the string when T and M are kept constant. And the second result is nothing but NL value by calculation is 6616.2 Hz centimeter. So ये दो कंक्लूजन है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए ये एक्सपेरिमेंट से. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते तो वहाँ पे हमें NL बाय ग्राफ वैल्यू भी मिलेगा जो इस वैल्यू के करीब होगा. मतलब ये जो वैल्यू हमें बाय कैलकुलेशन मिला है वही वैल्यू हमें नियर अबाउट बाय ग्राफ भी मिल सकता है. ठीक है? सो ये वो हमारा रिजल्ट फ्रॉम सोनोमीटर 1. थैंक यू.